now, like the second session, Dr. Anjana Sagar will be, introducing all the guests and taking care of the rest of things. Yes, Dr. Anjana Sagar. A very good afternoon. On the dais, Deputy Joint Director of our Center of Independence of Partition Studies, Dr. Jyoti Trehan. Then our today's speaker, Dr. Harbans Singh and Dr. Amandeep Gill. Now, a very good afternoon here, and we welcome back to our afternoon session second of this one-day seminar, Revisiting Partition, Historical, Socio-Cultural and Political Perspectives. The partition of 1947 was not just a geopolitical divide, but a profound rupture that reshapes identities, cultures, and nation. Today, we revisit this watershed moment through interdisciplinary lenses, historical, socio-cultural, and political, to uncover its layered complexities. Now, with this brief introduction of this second afternoon session, I would like to introduce the Dr. Jyoti Trehan. Yeah. Dr. Jyoti Trehan Sharma is a professor in Department of Political Science, IB College of Women, University of Delhi. She specializes in Indian thoughts and public administration. She has authored a few books and also many research papers and articles to her credit. She has been actively involved with women's issues and have been associated with a few NGOs working on female feticide and insects. She is also an active participant and campaigner for disaster management programs. She received the Distinguished Teacher Award of University of Delhi and presented by former our President Honorable APJ Abdul Kalam Azad in 2009. She has also served the administrative positions of being the Vice Principal of the college and has been Joint Dean Foreign Student Registry, University of Delhi. Currently, she holds the position of Joint Director, Center for Independence and Partition Studies, University of Delhi, and also the Joint Proctor of Delhi University. Now, I would request Madam to please chair the session. स्पीकर्स को बुला लो ठीक है बाद में मैडम अपना बताएंगे और उसमें ऐड ऑन हो जाएगा Okay, so before Madam is starting to chair the session, I would like to introduce the speakers for today. It's really an honor and remarkable journey for achievements of two of our senior colleagues and speakers of the afternoon session. Dr. Harbans Singh, he is a luminary in Punjabi literacy studies and Sikh heritage, currently serving as professor and vice principal of SGTB Khalsa College, University of Delhi, with 33 years of academic leadership. He holds the PhD from Guru Nanak Dev University and alumnus from the Delhi University, renowned for his expertise in Gurmat poetry and the Gandhar movement. He has authored 2 books, edited 3 volumes, and published 13 research articles. His scholarly impact extends through conference on Guru Nanak Dev Ji legacy and the 400th Prakash Purab of Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, fostering dialogues on the Sikh philosophy and the history. Now, our second speaker is Dr. Amanpreet Singh Gill, Professor of Political Science in SGTB Khalsa College, specializes in regional politics and Punjab studies. A Delhi University alumnus with a PhD, he has
shaped academia at SGTB Khalsa College since 2003, leading programs like BA Program Humanities and IQAC initiatives, with 7 books and 15 articles on federalism, identity politics, and Sikh heritage, and his writings bridges scholarly, rigorous, and community engagements. His presentations in various conferences highlights regional governance and multiculturalism, advancing interdisciplinary approaches in Sikh studies. Both our scholars exemplify dedication to preserving Sikh heritage and enriching academic discourse through teaching, research, and institutional leadership. Now I kindly request Dr. Jyoti Trihan Sharma to officially declare the afternoon session. So now I request Dr. Ampreet Singh Gill ji to deliver his talk. And I'm thankful to my students who actually bear with me with such low tone. Thank you Anjana ji, Madam Jyoti Trehan ji, Sade Vice Principal Sahab, Harbans ji and Madam Jageet ji for giving me this opportunity. बहुत ब्रीफली मैं अपनी बात रखूँगा. स्टूडेंट्स जो हैं लगभग जा चुके हैं. 3-4 बातें जो आज के डिस्कशन से निकली हैं. सबसे पहली बात बहुत हम्बली बट बहुत फर्मली मैं ये कहना चाहता हूँ कि रूलर्स हैव नो रिलीजन. रूलर्स हैव ओनली वन रिलीजन, दैट इज पावर. They worship the only God, that is power. And rulers use the religion. उनका कोई रिलीजन, दीन, ईमान कोई नहीं होता. वो दीन को, रिलीजन को इस्तेमाल करते. तो बाबर से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक याद रखिए कि ये मुस्लिम नहीं थे. इनका सिर्फ लबादा जो था, इनकी अपीयरेंस मुस्लिम थी. दुनिया को दिखाने के लिए वो मुस्लिम थे. बाबर जो थे और कोई भी मुगल रूलर जो था वो उस तरीके से दीन में हज़रत मोहम्मद साहब की शिक्षा पे नहीं चलता था. शुरू कर लें बाबर से. मैं 1 मिनट में सबकी बता देता हूँ. बाबर जो है वो बिल्कुल उसका वो नहीं था. ही जितनी उसने शराब पी है वो किसी भी मुसलमान को इजाज़त नहीं थी. ठीक है. जो हुमायूं साहब थे वो ईशा ऑफ ईरान की एक धमकी देने से उन्होंने अपना मजहब छोड़ दिया था. वो शिया बन गए थे. ठीक है जी. उसके बाद अकबर के टाइम पे इस्लाम के ख़िलाफ़ जितना कुछ हुआ वो मेरे में हिम्मत नहीं है बताने की. उसके लिए आप सिर्फ राहुल शंकर की किताब पढ़ लें. जितना नुकसान इस्लाम को अकबर के टाइम पे हुआ. ठीक है जी. उसके बाद कौन आ गया? जहांगीर. दूर दूर तक उसका ही यूज्ड टू वर्शिप हिंदू सेंट्स. दूर दूर तक उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. बेसिक जो शिक्षा है इस्लाम की वो फॉलो नहीं करता. शाहजहां थोड़ा बहुत. और औरंगजेब कितना बड़ा मुसलमान था इसके बारे में गुरु गोबिंद सिंह जी जफरनामा में क्या लिखते हैं? ना साहिब शनासी ना मोहम्मद यकीन. तुम्हें मोहम्मद साहिब की शिक्षा में यकीन ही नहीं है. ये गुरु गोबिंद सिंह जी. तो क्या हम गुरु गोबिंद सिंह जी की बात पे यकीन करें या किसी और की? गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं कि औरंगजेब मुसलमान नहीं है. क्योंकि मुसलमान का फर्ज है हजरत मोहम्मद साहब की इत्माद रखना, उनके ऊपर एतकाद रखना. ठीक है. और कह रहे तुम तो हो ही नहीं सकते. तुम ना कुरान की बात मानते हो ना हजरत की बात मानते हो. ये मैं नहीं कह रहा, ये जफरनामा में लिखा हुआ. तो फिर कौन? मुगल को मुसलमान कहना एक बहुत बड़ी गलती है. और फिर आगे जी मोहम्मद अली जिन्ना साहब. जिन्ना साहब को ने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी. दूर दूर तक वो उनका इस्लाम के साथ कुछ लेना देना नहीं था. और जो बंदा इस्लाम को जानता था वो पाकिस्तान का विरोध करता था. अब्दुल कलाम आज़ाद. तो ये जो है सबसे बड़ी तो हमें ये जानना चाहिए
बड़ी सुबह जैसे सर सैयद मोहम्मद सर सैयद अहमद को दे दिया गया कि जी इनकी वजह से जो है वो ये सारी चीजें शुरू हुई। ये बड़े मसले हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज मैं सिर्फ इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। पहली चीज ये, हर चीज पार्टीशन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ा, बहुत कुछ हुआ, और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बेसिकली इस एरिया की ज्योग्राफी जिम्मेदार है। क्योंकि पाकिस्तान को बनाने वाला ना जिन्ना है, ना नेहरू है, ना गांधी है। पाकिस्तान को बनाने वाला चर्चिल है। क्योंकि चर्चिल, विंस्टन चर्चिल की अगर आप लाइफ देखेंगे तो जितनी उस आदमी को समझ थी स्ट्रेटजी की, सिक्योरिटी की, इतनी और किसी को नहीं थी। और वो 1945 में वो देख रहा था कि 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, वाइस चेयरमैन उनका जो ऑफिस था, ठीक है। और वो चर्चिल देख रहा था कि नेहरू के हाथों में सारा इंडिया दे देना, तो अफगानिस्तान, ईरान से लेकर केरला तक एक ऐसे आदमी के हाथों में पूरा हिंदुस्तान दे देना जो स्टालिन का चेला था। तो चर्चिल तो पूरे होशोहवास में, वो कभी आपने देखा है दुनिया की हिस्ट्री में कि 7 साल में एक नया देश बन जाए? 40 में आप पाकिस्तान मांग रहे हैं, 47 में मिल गया आपको। तमिल कितने साल लगे, उनको नहीं मिला अपना देश। आयरलैंड के लोग जो है वो 100-150 साल से लड़ रहे हैं, अपना देश नहीं मिला। तो पाकिस्तान को ऐसे कैसे मिल गया? वो भी उस आदमी को जिसकी उम्र का सिर्फ 1 साल बाकी बचा था, सिर्फ 1 साल। और एक पार्टीशन, एटली ने कहा था कि हम जुलाई 1948 में इंडिया छोड़ेंगे। मार्च में माउंटबेटन साहब आते हैं, 3 जून को ऐलान करते हैं कि 15 अगस्त को इंडिया छोड़ेंगे। कितने हफ्ते हुए? 4 हफ्ते जून के, 4 हफ्ते जुलाई के, 8 हफ्ते। 10 हफ्ते में हमें अपना फ्लैट नहीं खाली कर सकते। हम अपना LIG फ्लैट जो होता है ना, वो 10 हफ्ते में खाली नहीं कर सकते। 10 हफ्ते में इन्होंने 200 साल पुराना साउथ एशिया, ये इंडिया नहीं, साउथ एशिया छोड़ा। आज का बांग्लादेश, आज का बर्मा, आज का म्यांमार, आज का पाकिस्तान, सब, आज का गोवा, सारा जो है हिमालय से लेकर ये सारा 10 वीक में छोड़ दिया। ठीक, तो ये वजह थी सारी के कैटास्ट्रॉफी की। लेकिन ये होना था, इसे कोई नहीं बचा सकता था। क्योंकि जो इलाका है अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, इसके सेंटर में जो इलाका है, वो इलाका इंपीरियल पावर्स ने अपने पास रखना ही था। दुनिया की कोई ताकत उनको ये इससे छीन नहीं सकती। तो वो इलाका बेसिकली तब से लेकर आज तक, नाम उसका पाकिस्तान है, लेकिन बेसिकली दैट इज ए फ्रंट लाइन स्टेट दैट बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कॉलोनियल पावर, इंपीरियल पावर्स। उसकी कोई सॉवरेनिटी नहीं, उसके एयर स्पेस को कोई भी वायलेट कर जाए वो कुछ नहीं कर सकता। अब लास्ट में मैं इतनी बात कहता हूँ कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बावजूद इसका हमें फायदा भी हुआ। फायदा क्या हुआ? इतने लोग मारे गए, वो सब कुछ हुआ। आप कहेंगे जी मैं फायदा इस बात में किस चीज़ का देख रहा हूँ? फायदा ये हुआ कि सबसे पहले तो इस रीजन में से आने वाली माइनॉरिटीज हमेशा के लिए सिक्योर होगी। आप याद करें, किसी 5% अगर सिख बैठे होते, जो हिंदू बैठे होते आज पेशावर के इर्द गिर्द के गाँव में, आज उनका क्या हाल होता? आज भी लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज है कि आज हम उस सारा जो रीजन है जिसमें लगातार जंग हो रही है, लगातार आधा उसको चाइना कब्जा करना चाह रहा है, आधा उसके ऊपर US थ्रू अफगानिस्तान कब्जा करना चाह रहा है, सारे का सारा वो जंग हमारे गले पड़ गई। तो हमारा ये बॉर्डर जो था वो 800 साल से अनस्टेबल बॉर्डर था, वो सिक्योर हो गया। हम उस एरिया की चिंता से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। बाकी एरिया जो है वो से हम बड़े अच्छे तरीके से, वो कभी भी जो उसकी डेमोग्राफी है, जो उसका ट्राइबल सिस्टम है, जो उसकी बलूचिस्तान को दुनिया की कोई ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती।
बलूचिस्तान का जो है वो ज्योग्राफी एक पागलपन की निशानी है। कोई बंदा उसकी ज्योग्राफी को नहीं समझ सकता, ठीक है, कोई बंदा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसलिए ये हमारी जो है वो सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो गई पार्टीशन की वजह से। और दूसरा ये हुआ कि पार्टीशन से, पाकिस्तान बनने से दुनिया को ये पता चल गया, दुनिया में 2 ही देश रिलीजन के बेसिस पे बने हैं, एक पाकिस्तान 47 में, एक इजराइल 48 में। और दोनों का लॉजिक खत्म हो गया कि रिलीजन के बेसिस पे देश नहीं बन सकता। अगर देश रिलीजन के बेसिस पे बने तो दुनिया में 3 या 4 ही देश होने चाहिए, एक हिंदुओं का, एक सिखों का, एक क्रिश्चियंस का, एक मुस्लिम्स का, 4 देश होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। सो रिलीजन हैज़ नो बेसिस ऑफ कंट्री, और इसमें कोई हो नहीं सकता। तो ये एक पार्टीशन से दुनिया ने देख लिया कि रिलीजन, इंडिया ने अपना सेकुलर रास्ता अख्तियार किया, ठीक है, और उसकी वजह से ये बड़ी एक चीज़ होगी। दिल्ली को फ़ायदा क्या हुआ पार्टीशन का? पाकिस्तान के बेस्ट ब्रेन्स, वेस्ट पंजाब के बेस्ट पीपल, ठीक है, एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल कैपिटल, वो यहाँ आ गए। जो पूरे वेस्ट पंजाब में, पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में बिखरे पड़े थे लोग, उनकी वहाँ पे कोई पावर नहीं थी, ठीक है, वो लोग जो थे जिनका दिमाग और जिनके पास कैपिटल भी थी, और उन्होंने आके दिल्ली को, जस्ट इमेजिन दिल्ली बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन, ज़मीन आसमान का फर्क है। दिल्ली बिकेम मॉडर्न, ठीक है, बहुत सारा उसमें कुछ हुआ। तो इस पे जो है वो एक इजरायली स्कॉलर है रोतम जीवा, उसने किताब भी लिखी है। दिल्ली की हर जो है, हर बड़े एरिया का नाम जो है वो किसी न किसी इसी पार्टीशन रिलेटेड इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक बेसिकली, और जहाँ तक लॉस ऑफ टेरिटरी की बात है, सुबह मुझे सुनने को मिला कि 40% एरिया हमने लॉस किया है। ये एक बड़ी मिसलीडिंग बात है। पार्टीशन के बाद हमने सिक्किम को एक्वायर किया 74 में, ठीक है, और बहुत सारे एरिया, गोवा हमें मिला 64 में। 400 साल गोवा, जिस दिन बाबर को आया था इंडिया में, उसी दिन गोवा पुर्तगीज के साथ पास चले गया था, उसी दिन। उतना पुराना ऑक्यूपेशन था गोवा। दमन एंड दीव फ्रेंच से लिए हमने। तो इंडिया ने अंडर नेहरू बहुत कुछ गेन किया है, और नेहरू ने सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डिकी बर्ड प्लान को फेल किया, जिसके मुताबिक हर रियासत को आज़ाद होने का हक था। सो मॉडर्न इंडिया आफ्टर पार्टीशन गेन्ड ए लॉट ऑफ टेरिटरी, एंड लार्जली बिकॉज ऑफ नेहरू एंड पटेल, उनकी जो थी। जम्मू एंड कश्मीर अगर हमारे पास है आज की तक, तो दिस इज़ अगेन ए रिजल्ट ऑफ पंडित नेहरू एंड पटेल दोनों का, क्योंकि उन्होंने गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है 17 अगस्त को 4 दिन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराता रहा, और फिर गुरदासपुर इज़ दी ओनली लिंक बिटवीन इंडिया एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये पार्टीशन की जो है वो अच्छी बातें भी हमें याद रखनी चाहिए। सिल्वर लाइनिंग जो है, आजकल बड़ा ज़माना है पॉजिटिव थिंकिंग का, तो कुछ जो है वो चीज़ें ठीक हुई, और ये इसको हमें ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। रिस्पेक्टेड ज्योति मैडम जी, गुरकृपाल सिंह जी, प्रोफेसर अमनप्रीत सिंह, प्रोफेसर जहांगीर कौर, और मेरे सामने बैठे मेरे करीब दोस्त, सबसे बड़ा धन्यवाद इन स्टूडेंट्स का, प्रकाश सिंह का। एनसीसी के विद्यार्थी सुबह से अर्ली मॉर्निंग से लगे, अभी भी बैठे हैं। मैं तो बहुत गदगद हूँ आपके इस डिसिप्लिन से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से बातें हो रही हैं, सब चेयरमैन साहब ने जितना डिटेल में बता दिया, इसके बाद मेरे को लगता है कि कुछ नहीं रहेगा हमारे पास, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ रेपिटेशन होगी। सिर्फ मैं अपनी बात, आज़ादी हमारे को मिली, और
जिन शहीदों ने आज़ादी दिलवाई उनके बारे में थोड़े से 1-2-4 आंकड़े हैं, वो आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद ये समाप्त। तो मैं 2 बातें सुबह चेयरमैन साहब ने बात की है, एक वायलेंस की, एक नॉन वायलेंस, और ये भी बात की है कि पंजाबी जड़े है ना, ये पहला तो दलेर ने, और बाबर के आने तो पहला तो भी दलेर सीगे और हुण भी रहणगे। गुरु नानक देव जी ने वरदान दिता, निरभौ ते निर्वैर, ना किसी ना वैर करना ते ना किसी तो डरना। तो गुरु तेग बहादुर साहब का एक कालज बख्शिशा साहब, उन्होंने भी सानू वरदान दिता भी ना किसी तो डरो ते ना ही डराओ। इस करके ये पंजाब का खिता, पंजाब के रहने वाले पंजाबी कदे किसी तो डरे नहीं ते ना ही डराए। रह गई गल हुण वायलेंस की, कुछ साडे लीडर कहते सी भी नहीं हिंसा माड़ी है, कोई एक थप्पड़ मार दिंदा वो थप्पड़ खा लो ते दूजा भी गल अगे कर दो भी इधर भी मार लो। पर कुछ लोग जिहड़े हैगे आ गर्म ख्यालीए कहते भी नहीं ना असीं कुटना ते ना कुट खानी है। वो धड़ा जिहड़ा सीगा वो बन गया रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, ते वो क्रांतिकारी धड़ा जिहड़ा सीगा वो अज भी असीं उन्हां नूं उन्ना ही मान सत्कार दिंदे आ जिन्ना दूजिआं नूं। ते ये क्रांतिकारी जिहड़े हैगे आ ये क्यों क्रांतिकारी बने, वो भी अंग्रेज़ गौरमेंट दे विच उन्हां दे खिलाफ ही लगे। कारण रहा ਉਹਦੇ ਚ मैं एक आंकड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ कि 1891 1891 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 1850 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਤੱਕ ਕੋਈ 25 ਅਕਾਲ 25 ਅਕਾਲਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਬਾਦੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 60,000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ 2 ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲਗਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਨਗਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਤੇ ਨਗਦ ਜੇ ਲਗਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਪਾਸ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਸ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅਨਾਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆંકੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ 1900 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 1924 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਨਾ ਰਹੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? 2 ਹੀ 3 ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ,
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕੁਛ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਮੈਡਮ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਲਾਇਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਡਰਟੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਇਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਚੁਭੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪਈ। ਉਸ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਲੈਗ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ 1913 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ, ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰ ਇਤ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਦੀਜੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਿਡਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਮਚਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸ਼ਹੀਦੀ, ਬਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ। ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਡਮ ਸੈਲੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੁਆਲ ਕੋਠਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ ਐਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਲ ਗੇਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗ੍ਰਿਲ ਗੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਫੁੱਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਠਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਠਰੀ ਦੀ ਬੈਕ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, 2 ਔਰ ਬੰਗਾਲ, ਇਹ 3 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ। ਔਰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ
शहीद उधम सिंह, ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Namaskar, good afternoon, Sat Sri Akal. I think it has been a beautiful day. Since morning I am here in the capacity of being the Joint Director for Center for Independence and Partition Studies. पर उसके बारे में वो जो ये दो बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशंस हुई हैं, डाइस पर हरबंश जी बैठे हैं, अमनप्रीत जी ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया है, को-कोऑर्डिनेटर इज़ देयर, द टीम इज़ देयर। मैं आपके साथ एक बस बात साझा करना चाहती हूँ जहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। मैं सेंटर के साथ ना दिमाग से ज़्यादा दिल से जुड़ी हूँ। शायद इसलिए भी है क्योंकि मेरे दोनों साइड के ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे नान के थे, मेरे दाद के, दोनों अनडिवाइडेड इंडिया तो ऐसी, आई डोंट कॉल इट पाकिस्तान, दे केम फ्रॉम अनडिवाइडेड इंडिया। तो वो दर्द और मर्म कहीं ना कहीं बस गया। आगे वाली थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन को इनकी कितनी कहानी पता होगी, मुश्किल है। तो शायद ये एक छोटा सा एफर्ट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया। एंड अ पर्सन लाइक मी, आई फील ब्लेस्ड कि मुझे 33 साल हो गए हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हुए, और सडनली एक दिन मुझे जॉइंट डायरेक्टर चुना जाता है, और जिस दिन से हुआ है आई एम काउंटिंग ऑन माई ब्लेसिंग्स। इतनी खूबसूरत ये जर्नी रही है। जो मॉर्निंग में रविंदर सर कह रहे थे कि हमने 41 पार्टीशन सर्वाइवर्स से मुलाकात की है, वीडियोग्राफ किया है, और सब बातों के अलावा मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाह रही हूँ। अनडाउटेडली दे हैव रिजन, उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाई, बहुत मेहनत की है, अपने बच्चों को कामयाबी तक ले गए हैं। लेकिन एक और चीज़ जो शायद हमने महसूस की, मेरी टेक्निकल टीम के एक्सपर्ट गुरजीत यहाँ पे हैं, इन सभी ने कहा कि इससे पहले हमसे कोई बात नहीं करने आया, जो एक बहुत मतलब रोंगटे खड़ी करने वाली एक बात थी। और मजबूरी वाली बात यह है कि फैमिलीज़ में भी बच्चे बात नहीं करते, कोई उनसे जानना नहीं चाहता कि आप कैसे उठकर चले आए, क्या रहा आपका दर्द, तो वो उसमें संजोए बैठे हैं। तो शायद मैं इसको एक ब्लेसिंग मानती हूँ कि मैं सेंटर के साथ जुड़ी हूँ। As I said, both my families have also come from that side of undivided India. It was a struggle for them, very big struggle for them. कई बारी उजड़ने और बसने की कहानी रही, क्योंकि जो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के आ गए, और कभी एक किराए के मकान में तो कभी दूसरे किराए के मकान में। कुछ सपोर्ट कहीं मिला, मेरे नान के साइड को थोड़ा नीलोखेड़ी की तरफ मिला, लेकिन मेरे दाद के साइड को दिल्ली में आके ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट से। बट ये जर्नी आगे बनी रही। तो अक्सर जब मैं अपनी मदर से बात करती थी, फॉर्चुनेटली उनकी ब्लेसिंग्स आज भी हैं मुझ पे, शी इज़ देयर। मेरी मदर मुझे एक कहानी सुनाती थी, वो भी गुरु नानक देव जी की। उनका दिन शुरू ख़त्म नहीं होता जब तक वो जपजी साहब का पाठ नहीं कर लेती हैं। सो शी यूज्ड टू से कि गुरु नानक देव जी एक पिंड में गए थे जहाँ पे अच्छे बुरे लोग सभी थे। नोटिस किया गया कि जब वो निकल रहे थे तो जो अच्छे लोग थे उनको कहते थे उजड़ते रहो, और जो थोड़े से और तरह के एलिमेंट्स होते हैं हमारे सोशल स्पेसेस में, वो कहते हैं बसते रहो। तो लोग बहुत हैरान हुए कि ऐसा क्यों। तो शायद इसमें बहुत गूढ़ मंत्र है, बहुत गूढ़ चीज़ है समझने की, कि अच्छे लोग जब उजड़ गए, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव नैरेटिव। जब अच्छे लोग जहाँ वहाँ जाते हैं ना, तो उनके साथ उनकी अच्छाई ट्रैवल करती है, और बेहतर हो कि जो बुरे लोग हों वो इक्को जगह बसे रहें, तो बहुत बेहतर होगा। तो कभी कभी शायद मैं पार्टीशन में भी कुछ ऐसा देखती हूँ कि ये जितने लोग वहाँ से निकल कर यहाँ वहाँ बस गए,
शायद आज भी हमारे ह्यूमन स्पेस में वो अच्छाई जिंदा है. सो आई टेक इट दैट वे. अमरप्रीत सिंह जी ने बहुत अच्छा नैरेटिव presented a narrative about leaders don't have a religion. ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. और अगर मैं मॉर्निंग में आपके चेयरमैन सर जिन्होंने इतना खूबसूरत नैरेटिव प्रेजेंट किया, अगर आप इसको एक रिसर्च मोड पे डालेंगे ना, तो आपको इमेंस टॉपिक्स मिलेंगे रिसर्च करने के. व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज लीडरशिप ऑल अबाउट. बिकॉज इन हिस्ट्री वी हैव अ नैरेटिव that every leader's hands are stained in blood. And there's another narrative which says that those who are in the habit of social service, those who can serve community, those who can serve people, only they should become leaders. So there are many things which can come out because of this understanding. तो बहुत खूबसूरत, थोड़ा सा हम सबको इस सेशन में समय की कमी रही, बट हमें इस अंडरस्टैंडिंग को, इस नैरेटिव को आगे ले जाना है. अगर आप छोटे अपने स्टूडेंट्स के साथ एक अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम भी कॉलेज के अंदर भी शुरू कर पाएँ, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी. बिकॉज लेट अस अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिक्स इज़ फ्रूटलेस. हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिक्स इज़ फ्रूटलेस एंड पॉलिटिक्स विदाउट हिस्ट्री इज़ रूटलेस. तो इन दोनों ही चीज़ों को हमें समझना है. तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा उन्होंने उठाया है लीडरशिप को लेकर कि लीडरशिप क्या है. लेकिन जब हम पार्टीशन को देखते हैं तो पार्टीशन एक नैरेटिव लेकर आता है, और जिसके अंदर ये है कि पहली बार राजे नहीं बदले. प्रोफेसर कपिल कपूर ने बहुत खूबसूरत तरीके से अपने बहुत प्रेजेंटेशन में कहा है कि जब आप 1947 के पार्टीशन को देखते हो तो इसमें राजे नहीं बदले, रियाया बदली है. सो देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर टू बी अंडरस्टूड, and it's not just simple word partition. There are many more complexities which are attached to it. I am glad कि इस सेशन के स्पीकर अमनप्रीत जी ने इस इशू को उठाया है और लीडरशिप के नैरेटिव को लिया है, क्योंकि ये जो जनरेशन बैठी है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जो स्टूडेंट्स यहाँ मॉर्निंग से बैठे हैं, सैल्यूटेशन टू ईच वन ऑफ यू, टू ईच वन ऑफ यू. मैं इसलिए नहीं कि आप पेशेंस है या आपको ज़बरदस्ती क्लासरूम से लाकर यहाँ बिठाया गया है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपको ना कोई 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बिठा सकता. आप जो यहाँ बैठे हो ना अपनी मर्जी से बैठे हो, और आप वो हो जो इस देश के कर्णधार हो, आगे लेके जा रहे हो. कोई 18 को है, वो 18 से ऊपर हो गया, और कम से कम आज हमारे पास, आपके पास 18 की उम्र में एक राइट टू वोट मिल रहा है. सो चूजिंग योर लीडर्स वेरी प्रिकेरियसली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो स्याही होती है ना, कभी अभी हमने इलेक्शंस देखे हैं तो कईयों की उंगली पे भी पे है, मैं सर के देख रही थी, तो स्याही बहुत ज़रूरी है. तो एक उसका छोटा सा एक सुनाऊंगी जो मैं बहुत पसंद है. स्याही की तासीर का अंदाज तो देखिए जनाब, स्याही की तासीर का अंदाज तो देखिए जनाब, बिखर जाए तो दाग बनती है, दर्द में डूबी हो तो शायरी, बिखर जाए तो दाग बनती है, और दर्द में डूबी हो तो शायरी, और उंगली पर लग जाए तो सरकार बनाती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट एंड वन मस्ट टॉक अबाउट इट. हरबंस जी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा उठाया है क्रांतिकारियों के बारे में, और इस नैरेटिव पे मैं बस छोटा सा, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी. बहुत जल्दी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है ताकि हम क्रांतिकारियों के से और शहीदों से जुड़े हुए एक अंडर ग्रेजुएट पेपर को ला सकें. तो बहुत जल्दी हम उस पर काम करने वाले हैं. वी हैव टू नॉट फॉरगेट देम. हु इज़ द रियल मार्टायर, किसने शहीद हुए. शायद अगर आपके चेयरमैन सर के नैरेटिव से देखें, आपकी लपटों से निकल जाए तो वो भी शहीद ही है. मतलब जो कुछ सब कुछ छोड़ के निकल कर आए और फिर से दुनिया बसाई, वो भी शहीद ही हैं. और आज इम्पॉर्टेंट डे मैं इसलिए मान रही हूँ क्योंकि बस परसों 23 मार्च को हम भूल जाते हैं, पर शहीदी दिवस तो वो माना जाता है 23 मार्च को, जब भगत सिंह जी को फांसी में चढ़ाया गया था अपने 2 सहयोगियों के साथ. So it is a very important day to understand all these things. He's talked about the plight of farmers. He's talked about कैसे हमारा हार्वेस्ट जाता रहा. लेकिन अंडरस्टैंड हमें ये करना है कि इस आज़ादी को क्या हम लेकर चल रहे हैं, उसके क्या मायने हैं. आप ये मत सोचिए कि कभी ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं होगा.
We are aiming for a developed country by 2047, but each one of us has to contribute. I'll retire maybe in another 6-7 years, many more people will retire, but finally we land up the baton with all of you to take it further. तो मैं आपके साथ एक छोटी सी कविता शेयर करूंगी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी थी। बहुत इम्पोर्टेंट कविता है जो पाकिस्तान जब बनाया गया था उसके बाद की गई थी। 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। Thank you so much, and thank you for giving Center for Independence and Partition Studies this opportunity to collaborate with you. I think there are many mediums by which you can connect with us. The center is open to my colleagues, to all the students. Anytime you wish to drop in, you want to talk to us. If you find that in your neighborhood there is somebody who has been a partition survivor, their families live there, we are out there. और मुझसे भी पहले गुरजीत सिंह हाँ करेगा उनका जाके इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि इसके बिना हमारी वीडियोग्राफी नहीं होती है। ये हमारी सोल है, हमारे सेंटर की सोल है। एंड बिफोर आई लीव अनडाउटेडली ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस या सेमिनार सिर्फ टीचर्स नॉन टीचिंग या उनसे जुड़े हुए नहीं होते हैं। A lot of work goes आपके गार्डनर्स का, आपके नॉन टीचिंग स्टाफ का, आपके इलेक्ट्रिशियंस का, उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई वांट टू थैंक our assistant from my office, Rohit is here. Rohit does immense work in our office. So thank you Rohit for all your help, and thank you to your chairperson, to your entire organizing team. You've made our day big. Thank you so much. Yeah, as we are towards the closing of the afternoon session 2 today, now I would call Dr. Yashpreet Kaur here to present the couplet by renowned Punjabi poetess Amrita Pritam titled मैं आखा वारिस शान। Please. सत श्री अकाल। आए हो सारे मान जो साडे विच बैठे, इन्होंने पार्टीशन बारे इतना कुछ सानू दसिया। मैं आज इतना अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ और आप सबको सुना, और हमारे चेयरमैन सर ने जो स्पीच दी, वो जो चीज़ें हमने फील नहीं करी, हमने देखा नहीं, हमने इतना ज़्यादा उसके बारे में सुना भी नहीं, और आज वो सब सुना तो बहुत, मेरे ख्याल से यहाँ बैठे सभी लोग बहुत अच्छा उनको लग रहा होगा कि हमने वो चीज़ें सुनी आज, और यहाँ बैठ के उस चीज़ों को फील किया, महसूस किया। आज हालांकि मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, लेकिन जो ये आज टॉपिक है पार्टीशन का, तो कहीं ना कहीं जो एक अमृता प्रीतम जी की एक नज़्म है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, तो मैं कोशिश करूँगी गाने की। थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगी, तो थोड़ा सा बता रही हूँ बच्चों को कि जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ उस समय अमृता प्रीतम जी पंजाब की एक बहुत मशहूर शायरा हुई हैं, लेखक हुई हैं, तो उस समय उन्होंने वो सारी चीज़ें खुद देखी, खुद फील करी, तो उनकी आत्मा अंदर तक कांप उठी जब स्त्रियों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा था और खून व कत्लेआम हो रहे थे। तो अमृता प्रीतम जी की आत्मा अंदर तक कांप उठी और उन्होंने वारिस शाह जी को संबोधन किया। वारिस शाह जी जिन्होंने हीर लिखी है, और उन्होंने एक हीर के ऊपर हुए अत्याचार पर पूरी एक ग्रंथ लिख दिया। तो अमृता प्रीतम जी की आत्मा अंदर तक कांप उठी और उन्होंने वारिस शाह जी को संबोधन करके कहा, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैण, अज लखां धीआं रोंदियां तैनू वारिस शाह नू कहण।
वारिस शाह वारिस शाह अज आखा वारिस शाह नू कितों कबरां विचों कि अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरखा कि अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरखा एक रोई सी धी पंजाब दी रोई एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैण वैण वे अज लखां तियां रोंदी अज लखां तियां रोंदियां तेनू वारिस शाह नू धरती ते लऊ वसिया वसिया कबरां पईयां चोण प्रीत दियां शहज़ादियां प्रीत दियां शहज़ादियां अज विच मज़ारा रो उठ दर्द मंदां दिया दर्दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब उठ तक अपना पंजाब अज बेले लाशां विछियां बेले 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 लाशां विछियां अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी परिचना अज सब कह दो बन गए हुस्न इश्क दे चोर अज किथों ले आइए लब के वारिस शाह इक वारिस शाह इक वारिस शाह इक Thank you, Yashpreet, for such a melodious song. Now it's time to formally end the afternoon session 2. And now I respectfully invite Professor Satish Verma, coordinator of IQAC SGTB Khalsa College, to come on stage and deliver the vote of thanks. Sat Shri Akal to everybody.
So on behalf of IQAC, all members, it's a privilege to give vote of thanks. So actually the seminar I think I attended when our chairman sir started. So I could not go to my class. My students were messaging me, sir, you are not coming. So I said, wait. So I think they waited for me 45 minutes. Then still half an hour मैंने उनको थोड़ा पढ़ा के आया. But I really missed, I think in between. So it's my pleasure कि यहाँ पे हमारा जो भी 1 डे का नेशनल सेमिनार हुआ, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी कॉलेज ने किया, आई थिंक उसके सूत्रधार जो है वो सेंटर फॉर जो स्टडीज़ आपका इंडिपेंडेंस का, आई थिंक ये नाम जो रखा है सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़, सहयोग तो उन्हीं का ही है. और मेनली जो है जो आई थिंक जो मैडम ने जो लास्ट में जो सबके छोटे छोटे बातों को लेके ऐड ऑन किया है कि किसने क्या कहा और फिर उसकी बात को लेके आपने रिसर्च तक लेके गए हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे रिसर्चर जो प्रोफेसर्स हैं उनके लिए. और आई थिंक ये मोटिवेशन है कि हमें इस कॉलेज में आई थिंक इस सेंटर के लिए कोई रिसर्च पेपर जरूर मिलेगा, ये मोटिवेशन है. तो आपने उनको कैच करके उनको इंटरप्रेट किया और उनको अप्रिशिएट किया और इनकरेज किया आपने. सो मेरा स्पेशल थैंक्स जो है सबसे पहले मैडम जो जॉइंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रोफेसर ज्योति त्रेहान जी को, और प्रोफेसर रविंदर कुमार जो डायरेक्टर हैं CIPS के उनको है, जिन्होंने आई थिंक फुल सपोर्ट कोऑपरेशन किया स्टार्टिंग फ्रॉम द जब ये शुरुआत हो रही होगी उसके लिए कैसे एग्जीक्यूशन करना है, क्या करना है. सो टिल द एंड फ्रॉम द आई थिंक पिछले 2 महीने से इसकी तैयारियां चल रही हैं, जिसकी जो तैयारी चल रही है उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो इंकरेजमेंट है वो हमारी गवर्निंग बॉडी पेरेंट बॉडी को जाता है, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब का और हमारे जो ट्रेनर साहब का और स्पेशली जो हमारे गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स का, और उसके बाद हमारे प्रिंसिपल साहब का जिन्होंने हमें तहे दिल से इन चीज़ों को करने के लिए प्रेरित किया कॉलेज के अंदर. मैं तो कह रहा हूँ कि अगला जब भी ये हो तो ये बाकायदा ऑडिटोरियम में हो, जिससे और ज़्यादा लोग ऑडियंस हमारे इसको सुनेंगे और दूसरे कॉलेजेस के लोग भी आएँ, बच्चे आएँ, जिससे और प्रोत्साहन मिले. और ये अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर हरबंस सिंह जी जो हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं, और प्रोफेसर जागीर कौर पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, उनकी लीडरशिप में हुआ. और स्पेशली जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो मेंबर ने डेडिकेटेडली काम किया, जिनमें मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गुरगोपाल सिंह जी जो कि शायद इस महीने रिटायर होने वाले हैं, लेकिन जाते जाते भी अपनी छाप छोड़ के जा रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आगे जो यंग जनरेशन में जो हमारे जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको पता चले कि हम एक दिन भी यहाँ पे कॉलेज का अपना देते वक्त ये नहीं सोचेंगे कि अब तो रिटायर हो रहे हैं अब क्या करना है, हम लास्ट डे तक भी कुछ ना कुछ दे के जाएंगे. तो यंग को एक प्रेरणा मिल रही है. तो गुरगोपाल सिंह जी जो हैं हमारे जिन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग जो दिया है, और उनके साथ जो है हमारे जो टीचर्स हैं जिनके नाम मैं लेना चाहूँगा, मिस्टर वीरेंद्र कुमार मेहरा जी एंड प्रोफेसर सुखबीर सिंह जी, प्रोफेसर विनू गोपाल जी, डॉक्टर अंजना सागर मैडम, डॉक्टर गुरविंदर कौर, और यंग टीचर्स में डॉक्टर गुंताशा एंड डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव एंड डॉक्टर पुनीत सिंह लांबा जो अभी कंप्यूटर्स का सारा देख रहे थे, और डॉक्टर प्रकाश जी जिनका अभी नाम लिया, जिन्होंने आई थिंक मैक्सिमम ऑडियंस जो है, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्लासेस में स्टूडेंट्स को कई बार टीचर्स नहीं छोड़ते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स फंस जाते हैं. तो इन्होंने बड़ा सहयोग दिया कि अपनी पूरी टीम यहाँ पे, और इनके ज़रिए मुझे लगता है कि सब तक बात पहुँच जाएगी जो यहाँ पे डिस्कस हुई है, ये बहुत अच्छा है. तो प्रकाश जी सिंह का, और आई थिंक डॉक्टर जसप्रीत कौर जिन्होंने अपना पूरा जो भी आवाज़ में, चाहे इनकी आवाज़, इन्होंने कहा कि मेरा गला ख़राब है, लेकिन हमें तो कहीं महसूस नहीं हुआ कि गला ख़राब है. अगर इसमें इतनी अच्छी है तो गला ठीक होगा तो और भी अच्छी होगी, ऐसा लग रहा है. आज तो बोला ही नहीं, बहुत अच्छा इन्होंने किया. और सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो हमारे आई थिंक स्टूडेंट वॉलेंटियर्स जिन्होंने हमारा कॉलेज में जितना भी आप आसपास डेकोरेशन देख रहे होंगे, इतने स्टेज से पहले कितना कुछ नज़र आता है कॉलेज में एंटर होते ही, वो स्टूडेंट वॉलेंटियर्स ने किया है. और इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ का भी हमारा काफ़ी सपोर्ट है. तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा लगता है कि हमारे कॉलेज में कोई
इंटरनेशनल इवेंट ही हुआ है, चाहे उसको नेशनल सेमिनार कह रहे हो, बट ये इंटरनेशनल है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि कोई यहाँ से कहाँ गया होगा, लेकिन वो लोग भी अगर हमारे वेबसाइट के ज़रिए जब कोई ना कोई क्लिप्स, कोई ना कोई लेक्चर्स को ज़रूर आप अपलोड करेंगे, वो जब खालसा कॉलेज की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो शायद वो महसूस करेंगे कि हमारी बात भी कही गई है। तो ये इंटरनेशनल इवेंट ही कहूँगा मैं तो। ये तो बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि रिसर्च में मैडम ने जो ये बात कही है कि रिसर्च में इसको लेके जाएं। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये इंस्टीट्यूशन हमारा एक कलेक्टिव एक तरह से वॉइसेस को लेके, ये प्लेटफॉर्म को लेके जिस तरीके से शुरू किया है, ऐसा ही और भी मुद्दे होंगे। 1947 के अलावा भी कई मुद्दे होंगे जिनको यहाँ पे उजागर किया जाए और इस तरह के इवेंट्स किए जाएं। सो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम का, मैडम का, आप सबका, जो आप सब ने इतनी देर तक यहाँ पे इस चीज़ को हमारे को सत्कार दिया कि भाई हमारा कार्यक्रम सही से चले। थैंक यू सो मच।